Hey guys, today we are going to discuss about distance and displacement. Is very easy topic that you have already studied. Whenever there is a term coined displace, it means that something is shifting. For example, this pen is getting displaced from this position to this position. So it has shifted. By what means that we also have to see. So whenever the position is shifted from this point to this point, if we are knowing कि it is taking off which route, किस route से आ रहा है, then it is a distance. But if you're seeing only the 2 points, initial and final point, then there is a displacement that you already have. Distance is just a path. Distance is the total path travel. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पॉइंट P है और ये पूरा ऐसे पाथ लेके जा रहा है. ये A से लेके B तक आया तो कितना पाथ ट्रेवल किया, दैट इज अ डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रेवल. आर यू एबल टू सी? फॉर एग्जाम्पल वन बॉय वाज हियर and he has gone away, और जब उसने आके देखा तो what he has seen that it has shifted from one point to another. यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट हुआ. So the displacement is the shortest distance. ये पॉइंट अगर होगा तो we will calculate about this is what, this is the displacement. This is a displacement. Displacement is the shortest, which tells you about the initial and final point. What else we should know about distances? Distance is path travel, and distance is measured in what? Distance is measured in meters. What is distance? Distance is the length, and the dimension of length is L, and the unit of length is meter. So distance जो measure किया जाता है, what is it? Is I'm just telling you in the brief. It is just a revision session. Distance is total path travel, and it is the dimension of distance is L, and its unit क्या meter. Displacement क्या? It is the shortest distance. As well as distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Scalar से मतलब क्या समझते हैं? एक पेन है मेरे पास, that is scalar quantity. ये कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, that we do not know. When we include this one pen, a one quantity, a one magnitude, then it has a direction that is called displacement. So displacement has magnitude as well as so displacement has magnitude plus direction, and distance only has magnitude. And which only has magnitude is called scalar quantity, and the which has magnitude plus direction is called vector quantity. ठीक है? For example, we have one position and this, one position and this. There can be many routes. बहुत सारे रूट हो सकते हैं A से लेके B तक. But displacement क्या होगा? Straight line which gives a short distance. That is called displacement. This is called, for example, path 1. This is called path 2. So which is the least distance? This is path 3. So path 3 is the displacement, right? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में आपको क्लियर होगा. डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन देखता है. डिस्प्लेसमेंट क्या बताओ आप मुझे, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता. क्यों? फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने आर्बिट्ररी पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया. मैंने देखा कि पाथ ट्रेवल कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो इसको अगर मैंने नेगेटिव माना तो यहाँ से मूव करते हुए जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया, वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट इधर जीरो भी होगी. वापस आने पे डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगी? जितना पाथ कवर किया उतने पाथ पे वापस आ गए. इनिशियल माइनस फाइनल पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट. डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एक और फॉर्मूला होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. ओके, तो फाइनल में से जब इनिशियल माइनस करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, फिर दोबारा इधर आ गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट वी डू नॉट नो. वी जस्ट ओनली नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. क्लियर? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ ट्रेवल, जो कि अगर ये ऐसा पाथ है, मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर होता है. रिवीजन सेशन है, कोई डिटेल में नहीं है सेशन, ये रिवीजन सेशन है. और डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव टू. क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. कैसे हो सकता है? लेट्स मेक इट. फॉर एग्जांपल एक पाथ यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, दिस इज 0, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज C, सॉरी D. एक बच्चे ने यहाँ से ट्रेवल किया ऐसे 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 ऐसे, तो 3-3 मीटर ले रहा है. 3 मीटर्स 3 मीटर्स 3 मीटर्स. ओके, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. यहाँ पे लेट्स सपोज इट इज -2. यहाँ तक 3 था, ये 3 है, ये 3 है. यहाँ से लेके यहाँ तक जाते वक्त कितना डिस्टेंस हुआ? 3 + 3 + 3 दैट इज 9. और ये जब C से लेके D तक आया, लेट्स से पाथ A B C और D, A से लेके B से लेके हमारा डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? 3 + 3 + 3 दैट इज 9. अब वापस आया 3 3 3, तो ये 3 3 3 6 3 9. ठीक है, फिर ये वापस भी आया 9 + 9 18 18 और 2 क्या होगा? 20 मीटर्स.
यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस जो देख रहे हैं दैट इज 18 + 2 20 मीटर्स। हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहे क्योंकि कुछ तो पाथ ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस टेल्स अबाउट द पाथ ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये ध्यान रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनल पॉइंट माने इंसिडेंस पॉइंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जी? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा ए से लेके बी सी डी। तो हम इनिशियल माइनस फाइनल पॉइंट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल पॉइंट कितना है हमारा? फाइनल इज 2 -2 - 0 दैट इज -2। So this is displacement and that is distance.